Uh, all right, good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay, I'm starting now. Previous class we have seen this chapter. We have started this chapter atoms, chapter number 12. We have seen the alpha particle experiment and discovery of nucleus and atomic model, new atomic model, in which all the positive charge is at center called nucleus and electrons revolve around it as the planets do around the sun. Size of the nucleus is very, very small as compared to the size of the atom, and there is most of the atom has the empty space. That was the big findings of Rutherford by the help of alpha particle experiment. है ना, ये फिर उसका number of particles and scattering angle का graph, then path of the alpha particle or trajectory of the alpha particle we have discussed, and we'll continue further. Impact parameter. Impact parameter. Trajectory depends upon the impact parameter. What is the impact parameter? Let's see. Impact parameter देखिए. For example, here is the nucleus. और ये एक लाइन है and एक particle, एक alpha particle is approaching it with the velocity v. We draw the parallel lines along the velocity which is passing through the center of the nucleus. Now this particle will just move like this. When it comes close to the nucleus, it will be deviated. But यहाँ पर जो है, when it is far away, what is the distance between the velocity line and line passing through the parallel line passing through its center? ये जो distance है, that is denoted by B, that is the impact parameter. It is the perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle from the parallel line passing through the nucleus. ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, न्यूक्लियस से पास हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है when it is away from the nucleus, then distance between both is called impact parameter B, and if B is zero, मतलब particle ऐसे आ रहा है, alpha particle is coming along this line, it will bounce back when after coming close to the nucleus, because alpha particle is positive, this is, nucleus is also positive. If B is zero, theta, angle of scattering will be pi, alpha particle will rebound. Getting this? And if B is very large, यहाँ कहीं से, it will go undeviated. Theta will be zero, undeviated. B is of zero है, तो angle of scattering is maximum. और ये मिनिमम है. जब B large है, तो दोनों opposite चल रहा है. Got it? Impact parameter definition and relation between impact parameter and angle of scattering for two extreme cases. Otherwise, the relation is not there in our course. This is the only one you have to remember. Okay. So impact parameter is whether it is going to impact, it depends upon the value, its value. Distance कहाँ से measure करते हैं? Parallel line passing through the nucleus. उससे कितना पास है या कितना दूर है? That is what is the impact parameter when it is
अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, पास में आने से डिविएट हो गया, देखो ये, गॉट इट। नाउ वी सी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना पास तक जाके, व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0, ऐसे जाके कहीं ना कहीं से बाउंस बैक होगा, तो ये कितनी क्लोज पहुंच गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो लेट्स सी व्हाट इज, हाउ मच इट विल बी। ये है आपका, जब अल्फा पार्टिकल it is heading towards the directly heading towards the nucleus, so at some point it will come to the halt. In that case, distance between the nucleus and alpha particle is called distance of closest approach. How to get this? कैसे निकालेंगे ये? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने की क्या अप्रोच होनी चाहिए? व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? बोलिए, हाउ शुड वी गेट इट? Are you there? Yes, sir. How to get? इसमें similar to the previous chapter वो था अपना, और what was, हाँ, मतलब kinetic energy converts into energy. In previous chapter also we have seen the particle coming, उसकी kinetic energy half mv square converts into electrostatic potential energy. वहां पे हमने q into v लगाया, बट यहाँ पे टू पार्टिकल वहां पे v was given, v was used, यहाँ पे टू पार्टिकल्स आर यूज्ड, इसका चार्ज q1, इसका q2। तो न्यूक्लियस जो है, जो गोल्ड फॉइल की न्यूक्लियस है और एनी अदर न्यूक्लियस, उसका चार्ज कितना होगा? Q2 विल बी हाउ मच? Q1 एंड Q2 विल बी कितना पुट करेंगे, बोलो? हाउ मच शुड बी Q1 एंड हाउ मच शुड बी Q2 इन जनरल? Q1 is alpha particle, Q2 will be any other nucleus, कितना चार्ज होगा उसके, दूसरे कोई न्यूक्लियस नहीं तो how much charge will be there? Q1 is alpha particle, that is 2 times of charge of proton, or Q2 is the nuclei of gold or any other matter, it will be कितना चार्ज होगा? E into Z in general, so Z will be the number of protons, that is atomic number है ना, या तो बस इसको पुट करके आर के लिए सॉल्व कर लेंगे। के कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, के कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 is 2E and Q2 is ZE अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का R नॉट, तो वी नीड R नॉट, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो दैट्स व्हाट इज द फार्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड व्हाट विल बी, ठीक है, समझ में आ गया? तो डिपेंड करता है हाउ फास्ट द अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग, more faster it is, lesser will be the distance of closest approach. In other words, alpha particle will be coming very close to this, है ना? अगर हमने स्पीड काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी अल्फा पार्टिकल की, के डबल कर दी, तो दिस होल थिंग विल बी डबल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी हाफ। इफ वेलोसिटी डबल कर दी, if we increase the velocity to 2 times, then नीचे 4 आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी 1/4 और पास में आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल्ड। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका, वेलोसिटी डबल करने से नीचे 4 आ जाएगा, तो 1/4
of initial value. Second part में half of the initial value. Got it? Easy. This one is 2 and this one is Z है ना, पार्टिकल के ऊपर चार्ज 2 times अभी, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज Z into E. ठीक है, got it? Yes, sir. All right. Note it down. So this is the points related to alpha particle experiment. Extra points हैं ये, you can be useful for short questions. Any difficulty here? Anything you want to ask here? पूछने आपको? How did we write this? इसकी kinetic जब जिस समय रुकेगा, when it will be come to the instantaneous rate, that will be all the kinetic energy in that moment will be converting into potential energy. K is equal to potential energy हो जाएगा. And potential energy का ये formula होता है K Q1 Q2 by R. Electrostatic for 2 point charges. Okay, then let's see what is the next. Now, later on, there was question mark on its stability of the nucleus, stability of atom, atomic model given by alpha particle experiment. Rutherford ने जो alpha particle experiment से model दिया, उसमें electrons are revolving. Question was asked, when the electrons are revolving, they will emit the radiation. They will emit the radiation. EM waves emit करेंगे. They should lose the energy, and finally fall into the nucleus. So he could not explain. Later on, Niels Bohr explained the well-known that postulates of stability of atomic model. तो उसने हाइड्रोजन के लिए and hydrogen like atoms. Hydrogen like atoms कौन से होते हैं? Those which have only one electron in the orbit. Helium में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दो, जस्ट रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन. लिथियम में देयर विल बी 3, यू हैव टू रिमूव 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. बेरिलियम में 4, यू हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो like this, keep only 1 electron. Helium plus means 1 proton is extra as compared to electron. Nucleus में 2 proton है, there should be 2 electrons to neutralize its effect, but 1 electron has been knocked out, so it will have extra charge of 1 proton, therefore denoted by helium plus. ठीक है, आयोनाइड हो गया वो. Getting? So he gave the model for hydrogen and hydrogen-like atoms.
First one was okay. What क्या थे? फर्स्ट वन याद है किसी को? फर्स्ट कितने दिए? 3. फर्स्ट वन वाज व्हाट? डू यू रिमेम्बर एटॉमिक मॉडल केमिस्ट्री में? फर्स्ट वन वाज अबाउट द स्टेबल stationary orbits. Second one was what? कौन सी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है? MVR is equal to, are you there? MVR is equal to what? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी ऑर्बिट्स में कितना होता है? क्वांटाइज है. हाउ मच? एक पर्टिकुलर क्वांटम में 1 टाइम्स ऑफ सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू. NH by 2 pi. हाँ, n times of certain constant value which is h upon 2 pi. h is the Planck constant, 2 pi is the constant. दोनों कांस्टेंट है. एक कांस्टेंट की 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स वही ऑर्बिट्स में सरवाइव करेगा इलेक्ट्रॉन. दैट विल बी स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना? व्हाट अबाउट थर्ड वन? थर्ड वन इज व्हाट? इट वाज अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. ई इनिशियल जो उनकी जो एनर्जी लेवल्स होंगे उतने डिफरेंस का फोटोन निकलेगा, h nu. If electron moves from the outer orbit to the inner orbit, there will be the loss of energy, there will be the change of energy. Whatever loss is there, that will come out as a photons of that energy difference. So these were 3. So let's see. So electron revolve in the certain stable stationary orbit without of radiation energy. स्टेशनरी ऑर्बिट है, सडन स्टेबल ऑर्बिट्स रहेंगी, उसमें एमिशन नहीं होता. इट डजंट emit any radiation. Why? He didn't know himself. डी ब्रॉगली ने बाद में एक्सप्लेन किया why it is happening so. That we'll see at the end. ठीक है? He could give this concept, but he could not prove it. De Broglie proved that. Second one, electron revolves in those orbits in which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. In other words, angular momentum is quantized. एक particular quantum में है. इतना या इसका 2 times या 3 times या 4 times. Integral, I mean angular momentum of electron L is equal to mvr. circular orbit में angular momentum is mvr, which is n h upon 2 pi, and is the principal quantum number. तो ये क्वांटाइज है, इट इज क्वांटाइज है ना, एक पर्टिकुलर क्वांटम में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू h upon 2 pi. Got it? ठीक है. थर्ड वन वाज about the second one was about the angular momentum. Third one was about the energy of photons emitted. When electron makes transit from one orbit to other lower orbit, then photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states. यहाँ से यहाँ आया, फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी है EI, सेकंड में E फाइनल. तो difference of energy will come as a photon emission of certain frequency. So that's what is the third one.
ये भी दैट एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, पढ़ा था हमने, डेल्टा इज h इंटू एफ विच इज एच बाई लेमडा। तो ये डेल्टा ई कहाँ से आएगा? जो ऑर्बिट्स की एनर्जी है उनके डिफरेंस है, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ऊपर वाली जो ऑर्बिट रहेगी दैट विल हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिट। इनर मोस्ट ऑर्बिट हैज द मिनिमम एनर्जी, है ना। इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है, इट इज निगेटिव आल्सो, निगेटिव माइनस में हायर वैल्यू में होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी, तो माइनस है इसलिए वी कॉल इट मिनिमम। गॉट इट? क्लियर? यहाँ पे देखो हमने ई इनिशियल इज ग्रेटर देन ई फाइनल, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से हमें दिख रहा है इनिशियल विल बी हायर एज कंपेयर टू E1 E2 भी लिख सकते हैं, ई इनिशियल माइनस E1 माइनस E2 भी लिख सकते हैं, we can write E1 minus E2 or E initial minus E final. One is more. Initial means position one that will have more energy, and final means second position that is inner orbit, less energy. अगर समझ में बोर्स एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, बोले यहाँ तक ओके? Yes, sir. Alright. तो इससे रिलेटेड रिजल्ट देखते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की energy, frequency and time period in terms of n, quantum number के terms में what will be the radius of electron and how will it change when it goes to the second orbit, or it doesn't go, means it is I mean in second orbit what radius will it will have, what velocity it will have, what frequency, what kinetic energy, what total energy. So that comes from this relation and एक और रिलेशन यूज करेंगे रेडियस निकालने के लिए। तो लेट्स डू दैट। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के टर्म्स, एंड z आल्सो। z क्या होता है? इट इज प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर, उसके टर्म्स में रेडियस निकालते हैं। देखो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट आर द फार्मूला रिक्वायर्ड? एक तो फार्मूला लगेगा हमें, ये सेकेंड पोस्टुलेट लगेगा, ये उससे पहले कौन सा लगेगा फार्मूला? centripetal force revolving electron around the nucleus. Who provides the centripetal force? It is the electrostatic force between the what is called electron and protons in the nucleus. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड लिखते हैं हमेशा, वेक्टर क्वांटिटी है k q1 q2 by r स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाय r। who provides it? Electrostatic force 1/4 pi epsilon naught q1. q1 is the charge in the nucleus, you can take it Ze, and q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मॉड लेना पड़ता है वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो दैट इज ई। तो यहाँ से हमें mv स्क्वायर, r को r एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और mv स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई हमें, जेड ई स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे r बचेगा 4 pi epsilon naught r। तो फर्स्ट इक्वेशन comes from centripetal force relation, second comes from second postulate, mvr is equal to nh upon 2 pi। यहाँ से v की वैल्यू निकाली हमने, r को नीचे भेज दो और ये v की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो ये यहाँ आ गए, है ना, स्क्वायर हो जाएंगे ये पूरे टर्म्स, बिकॉज वी स्क्वायर इज देयर इक्वेशन 1. व्हाट वी गेट इज, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, है ना. सम टर्म्स विल गो 4 एंड एक पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, एंड 1 आर विल, अच्छा ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर को इधर शिफ्ट करके ये सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना? ये बच गया, देखो सम टर्म्स कैंसिल होने के बाद एक एम भी गया है. तो व्हाट वी गेट इज दिस वन, और राइट साइड में ये बचा हमारा, है ना. तो आर के लिए सॉल्व कर लो, सॉल्व इट फॉर आर. आर को एक साइड में कर लिया, उसको आर को आर एन लिखते, जनरल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एन एन है यहाँ पे, तो वी कैन राइट हियर, ऐसे लिख सकते हैं, और कर दो यहाँ पे, which will be epsilon naught h square upon pi m e square n square by z. तो इसको we can write rn, n will depend, n1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑर्बिट की मिलेगी, n2 पुट किया तो सेकेंड ऑर्बिट की मिलेगी रेडियस, लाइक दैट. किस पे डिपेंड कर रही है, देखो डिपेंडिंग अपॉन, ये तो कांस्टेंट है सारे, ऑल द कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट h पाई, ये डिफरेंट हो सकते हैं, है ना. एन कैन बी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. सेकंड ऑर्बिट में 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज एन स्क्वायर है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोस टू द सेकंड ऑर्बिट, रेडियस, आई मीन फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है सेकंड ऑर्बिट की 4 टाइम्स होगी, ऐसे लाइक दिस. फर्स्ट ऑर्बिट की अगर इतनी है, सेकंड ऑर्बिट की इतनी होगी बड़ी, 4 टाइम्स. इट इज नॉट डबल, इट विल बी 4 टाइम्स. गेटिंग और नॉट, एन स्क्वायर है, डिवाइड बाय जेड भी है, हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z1 हो जाएगा, और एनी अदर एटम्स, हीलियम के लिए कितना होगा, Z2 हो जाएगा. तो बिगर द न्यूक्लियस, आई मीन heavier the nucleus, less will be the its first, smaller will be its all the orbits as compared to hydrogen. हाइड्रोजन का तो Z1 हो गया, बाकी अदर हाइड्रोजन लाइक एटम्स में R will drop because Z will be more than 1. तो heavy nucleus में radii will come closer. Are you getting it or not? जितनी ज्यादा हैवी होगी उतना फर्स्ट न्यूक्लियस विल बी, and other nuclei will also, I mean first orbit and other orbits will come closer. Clear? Inversely proportional to Z. तो ये आपका रेडियस का रिलेशन हो गया. एनसीईआरटी बुक दे डन इट फॉर Z इज इक्वल टू 1, उन्होंने Z1 से ही किया है बस. और इस फर्स्ट ऑर्बिट की न्यूक्लियस को बोर्स ऑर्बिट भी बोलते हैं. देखो न्यूक्लियाई ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड बोर्स ऑर्बिट, है ना. सी देखो बोर्स ऑर्बिट डिनोटेड बाय A नॉट, when electron of hydrogen atom, that is hydrogen atom का Z1 होगा, revolves in the first orbit, n is equal to 1, then radius is called Bohr's orbit. यहाँ पुट कर दो 1 Z1, तो ये बचेगा, ये आ गया, and put all the constants, you will have, simplify करने के बाद 5.29 into 10⁻⁻11 मीटर, और we can write 0. इसको राउंड कर लो, राउंड ऑफ कर लो, 9 हटा के 3 कर दो, 5.3 कर सकते हैं, और -11 का एक -1 इधर शिफ्ट कर दो, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 10⁻10 बचेगा. दैट्स कॉल्ड एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम is the Bohr's radius, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है. गेटिंग इट नॉट? एंड व्हाट अबाउट अदर ऑर्बिट्स, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, गेट द फार्मूला फॉर,
कैन यू सी? कैन यू सी? तो अगर आपने Yes, sir. ये 0.53 लर्न कर लिया तो यू कैन फाइंड आउट ऑफ सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट लाइक दिस। और हाइड्रोजन के लिए भी, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी ये नीचे जनरल फार्मूला बन गया, आई मीन इजियर फार्मूला बन गया। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट। You can find out. Hold on. In place of remembering that one, this is easy to remember. ऊपर वाला फार्मूला याद नहीं होगा, वो न्यूमेरिकल्स के लिए इसको लर्न कर लो। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, that one is okay for derivation point of view. This one, अगर डेरिवेशन पूछते हैं तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए नीचे वाला फार्मूला यूज करो, कैलकुलेटेड कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके रखिए। यहाँ पे यू माइंड इट इज ए नॉट। ए नॉट कितना होता है? 10 to the power -10 होता है मीटर में। एंगस्ट्रॉम होता है, which is you should remember 0.53 n square by z a naught. Got it? Yes, sir. Any difficulty here? Anybody has any difficulty can ask. We have used the two equations, centripetal force की और second postulate को से v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी एंड सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। सो मेनी कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन क्या होगी? ये ऑल दिस टर्म्स पुट टुगेदर विल हैव व्हाट डायमेंशन? बोलो। m0 l1 t0, बिकॉज मीटर है ना, लेफ्ट साइड में रेडियस है, इट हैज टू बी मीटर, क्योंकि ये तो नंबर्स है, इनकी कोई यूनिट नहीं है, तो दिस ऑल पुट टुगेदर शुड बी मीटर्स ओनली। मीटर आ रही, देखो ये लिखा हमने मीटर यहाँ पर, तो मीटर की डायमेंशन एल। डन? Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो इसका एक वी विल सॉल्व वन ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी बुक। इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यू कैन यूज दिस लाइक, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, ये the radius of innermost orbit, so they are given radius of innermost orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 power -11 meter. What are the radii of n is equal to 2, n is equal to 3? n is equal to 2 में यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स हो जाएगा, n is equal to 3 पुट कर देंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा ना। यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें या इसमें, ऊपर रिलेशन। तो सिंस r is directly proportional to n square, है ना, बाकी टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ये सब पूरे टर्म डिवाइड करेंगे तो z भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर? नो, ये डिवाइड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट इज r1 by r2 is n1 by n2 स्क्वायर। r1 इज गिवन दिस, r2 निकालना है हमें, n1 इज 1, n2 2 पुट कर दो यहाँ पर 4 टाइम्स, और n3 सेकंड केस में n2 को 3 पुट कर दो यहाँ पे 9 आ जाएगा स्क्वायर होके, तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ये देखो ये r2 इज, एक मिनट, सिमिलरली R3 will be 9 times of
5.3 into 10 to the power minus 11. That comes to be multiply कर लो 4.77 into 10 to the power minus 10 मीटर, और ये कितना आएगा R2 मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी कमिंग 2.12 into 10 to the power minus 10 meter. This is 4 times, this is third one is 9 times, fourth one will be 16 times and so on. ठीक है, समझ में आ गया? This is the question number 8. तो उनकी जो ऑर्बिट्स है दे आर नॉट इक्वी स्पेस, गैप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सब ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड 4 टाइम्स, थर्ड वाली 9 टाइम्स, ऐसे इक्वल इक्वल गैप नहीं, अनइक्वल गैप, स्क्वायर कंडीशन। नो प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन था ये। Yes, sir. Okay. Now we can find out the velocity of revolving electron. वेलोसिटी निकालने के लिए आर के देखो सेकंड पोस्टुलेट फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, देखो फ्रॉम सेकंड बोर्स दैट सेकंड पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू n h upon 2 pi। यहाँ से v की वैल्यू निकाली, ये m एंड r को नीचे शिफ्ट कर दो, और v की जो वैल्यू है r के रिलेशन में पुट करो। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, r की वैल्यू यहाँ से जो ऊपर रिलेशन डिराइव किया वो वैल्यू पुट करो। r क्या था, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन अपॉन ये ऊपर आ जाएगा पाई एम ई स्क्वायर, और n स्क्वायर बाई जेड था, जेड ऊपर आ गया। देखो r डिनोमिनेटर में, पुट द वैल्यू ऑफ r, तो वी हैव पुट इट हियर। ये टर्म्स इंटरचेंज हो गए, r इज इन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर टर्म्स जो है ऊपर चले गए डिनोमिनेटर वाले। तो भी इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एन एन एच एच पाई पाई एम एम, कितने टर्म्स कैंसिल हो गए, 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक एच बचा है यहाँ पर, ऊपर क्या बचा है, ई स्क्वायर ही बचा है बस, और इधर जेड बाई एन बच गया। समझा क्या किया हमने कि v की वैल्यू सेकंड पोस्टुलेट से जो v है उसमें r को हमने इधर शिफ्ट किया पहले डिनोमिनेटर में, फिर पीछे जो r की वैल्यू निकाली अभी हमने फर्स्ट केस में वो पूरी पुट कर दी यहाँ पर। सिंस r इज इन डिनोमिनेटर तो टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे, इसमें भी डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगे। गेटिंग? तो ये एक रिलेशन है, इसमें देखो ये कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो बिगर द न्यूक्लियस, more will be the velocity of electrons in its orbits, and n, if n is 1 तो v is maximum, n minimum है, जब n minimum है तो v maximum है। तो मिनिमम कब होगा, फर्स्ट और n will be 1 minimum, तो इलेक्ट्रॉन इज फास्टेस्ट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट होंगे बिकॉज n कम्स इन डिनोमिनेटर। सेकेंड ऑर्बिट में 2 आ जाएगा, स्पीड आधी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में,
थर्ड ऑर्बिट में नीचे 3 आ जाएगा, 1/3 रह जाएगी, है ना। एंड हाइड्रोजन एटम में तो Z1 हो जाएगा, तो Z का रोल ही नहीं रहेगा। बट अदर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए Z विल बी मोर, so velocity will be more। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इज फास्टेस्ट इन द फर्स्ट ऑर्बिट बिकॉज n डिनोमिनेटर में है, n इज इक्वल टू 1, v विल बी मैक्सिमम, है ना। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास देखो कैंसिल हो गया इसमें, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन की जगह हम एक कोई इमेजिनरी दूसरा पार्टिकल भी ले आए हैवियर मास का, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, विल हैव सेम स्पीड। गॉट इट। तो ये कांस्टेंट है, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, है ना। लेफ्ट साइड में वेलोसिटी, बिकॉज दिस थिंग डजंट हैव द यूनिट। ये इसकी डायमेंशन अगर लिखनी पड़े क्या आएगी, m0 L t-1 वेलोसिटी है और स्पीड है L t-1, और इनकी सबकी कांस्टेंट पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, तो इट कम्स क्वाइट ए हाई वैल्यू 2.18 into 10⁶। ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स लार्जर वैल्यू, है ना। बिकॉज एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻12 है और ये h जो है 10⁻34 है ना। तो -46 ये हो गया, e की पावर 10⁻−19, तो 38 करीब, है ना। तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻6 बचेगा। इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वी नीड दिस रिलेशन, ऐसे टाइप के, है ना। बिकॉज रेशियो में क्वेश्चन होता है और बोर्ड के लिए आपको डेरिवेशन में भी रिक्वायर्ड, आपको ये पूरा आना चाहिए। बस आफ्टर दिस टू बाकी डेरिवेशन इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, ये सब इन दोनों पर रिलेशन डिपेंड करेंगे। वेलोसिटी एंड आर के रिलेशन पर दे विल बी डिपेंडेंट। गॉट इट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? सेकंड पोस्टुलेट में आर की वैल्यू पुट कर दी। अरे देयर, is there any issue of audio? No, sir. Okay, तो टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड इज सरकमफ्रेंस अपॉन ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस है 2πr, डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाय स्पीड v। तो इससे टाइम पीरियड आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/t, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। v की वैल्यू ये पुट कर देंगे इधर, रिमेनिंग ऑल 3 विल बी कमिंग फ्रॉम, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, velocity inversely proportional to n, when n goes up velocity comes down, rectangular hyperbolic, look like rectangular, है ना। तो इसमें ऐसा आएगा, देखो which of the following curves may represent the speed of electron in hydrogen atom as a function of n, function of the principal quantum number n। तो v inversely proportional to n, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमिलर टू द रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ऐसे ड्रॉप होता है वो।
है ना, प्योरली कंटिन्यूअस नंबर नहीं है, 1 2 3 4 है, तो देन आल्सो वी कैन से इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक और रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो सी ऑप्शन रहेगा। व्हेन द n goes up velocity goes down, स्लो हो जाता है ऑर्बिट्स में। तो सी इज द राइट आंसर, ये वाला। चलिए मार्क इट विद द रेड। कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए डॉटेड दिखाया उसको, है ना, बिकॉज क्वांटाइज है ना, ऑर्बिट्स आर 1 2 3 4 लाइक दिस। ऑलराइट, remaining you can do it। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आई टोल्ड यू, अपने आप कर सकते हैं, मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट भी किया है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड है ना, टी इज, एक मिनट यहाँ पे लिखो, टाइम पीरियड इज circumference upon speed, length of the circumference, ठीक है। तो 2 पाई आर बी आर बाई वी, तो आप आर की वैल्यू पुट करो ऊपर से, अभी हमने सबसे पहले निकाली थी वी की वैल्यू, उसमें बहुत सारे टर्म्स जो है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा, देखो यहाँ पे n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा, है ना? तो ये तो कांस्टेंट है, अगेन इनकी वैल्यू बुक में नहीं दी है, यू कैन जस्ट सी इट एंड नोट डाउन, या फिर कंप्लीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइड करके, है ना, आता है। इफ n becomes double, the time period becomes 8 times, direct it will be, time period will be 8 times, ऊपर क्यूब है ना, तो सेकंड ऑर्बिट में इट विल टेक 8 times more time as compared to फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज एक तो रेडियस बढ़ गई उसकी, रेडियस बढ़ने से स्लो डाउन भी हो जाता है, तो सर्कमफ्रेंस भी बढ़ गई, स्पीड भी कम हो गई, तो दिस फैक्टर इज 8 times बिकमिंग सेकंड ऑर्बिट। एक तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है और दूसरी स्लो डाउन भी हो रहा है आउटर ऑर्बिट्स में, ये टाइम पीरियड इज n to the power 3, डायरेक्ट इक्वेशन टू n to the power 3। हैवी न्यूक्लियस में टाइम पीरियड विल बी डिक्रीजिंग, that this number goes up, time period for the electrons will come down, got it। फ्रीक्वेंसी में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टर्म्स ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे और ये पलट जाएगा। गेटिंग और नॉट, ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, यू कैन जस्ट डू इट। शैल आई राइट इट हियर, बोलो आर की वैल्यू। आर का 2 पाई तो ये है, एंड दैट इज n स्क्वायर बाई जेड, है ना? नहीं, हाँ ठीक है, n स्क्वायर बाई, वी की वैल्यू नीचे बताइए, अभी हमने डिराइव की, e स्क्वायर जेड अपॉन 2 पाई, e स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर है z, यहाँ पर है, तो ऊपर 4 पाई स्क्वायर हो गया और एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर हो गया और h क्यूब हो गया,
एच मिस हो गया क्या? हाँ एच यहाँ पर नहीं, एच भी होगा वी में, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच। एच क्यूब हो गया अपॉन एक एक पाई कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पे पाई छूट आएगी। व्हाट अबाउट पाई? अच्छा यहाँ पे 2 पाई नहीं है, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट एच, हमने गलती से पाई लिखा। अरे देर, Yes, sir. ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया और नीचे m e4 z स्क्वायर, नीचे z दोबारा है, नॉट्स ओके। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दो इसको, इंटरचेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी हो गई और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर से कर लेते हैं, इतना कंप्लीट करके वाइंड अप कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज ई स्क्वायर है ना यहाँ पर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, सही है, कोई टास्क मिस तो नहीं हुआ है, ओके एम ई ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन है देखो, using the Bohr's model calculate the speed sorry calculate the speed of electron hydrogen atom in n is equal to 1 2 3, तो 1 ये जनरल ये फार्मूला हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, Z1 N1, तो V1 इतना आ गया और V2 इसका हाफ हो जाएगा, V2 will be half, V3 will be 1/3। एक मिनट, V2 हाफ हो गया इसका एंड V3 will be, तो ये आपका कितना आ जाएगा हाफ होने से 1, ठीक है, और 1/3 ऑफ V1, ठीक है। ऐसे ही रेडियस का फार्मूला लिखेंगे, रेडियस का रेडियस निकाल लेंगे, ये देखो R1 इतनी है, टाइम पीरियड का अगर फार्मूला याद है डायरेक्टली, बट उसके कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है ना, तो T1 निकाल लिया 2 पाई R1 बाई V1, R1 अपने पास ये है और V1 ऊपर है, डिवाइड कर लेंगे, टाइम पीरियड मिल जाएगा फर्स्ट का, और सेकंड का टाइम पीरियड कितना होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
n क्यूब है, 8 टाइम्स कर देंगे सेकंड के लिए, t2 8 टाइम्स ऑफ t1 है ना, यहाँ पे देखो t2 विल बी, यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेना है, और t3 विल बी क्यूब है ना, तो 27 टाइम्स ऑफ t1, ऐसा आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट यू शुड नो द मेथड। इसमें हम अगर फर्स्ट v1 एंड r1 याद है, वी कैन मैनेज बाकी पार्ट्स, कैन वी? यस, without needing the other support. Shall I stop it here? Tomorrow, again tomorrow 28 some of you are the exam है ना, हमने decide किया था 28 को भी नहीं होगा, 29th day after tomorrow will continue from here. ये chapter finish हो सकता है day after tomorrow. We will try to do it, complete it. इसके बाद nucleus का chapter है. All right. Any difficulty here? No, sir. Shall I end it now? ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, मैंने जस्ट आपको क्लू दे दिया कैसे करना है. You can complete it. If it is asked, you can just do it. So do you want to say anything of the today's topic? कुछ पीछे मिस हुआ है क्या? No, sir. तो what we have seen in Bohr's model, बताइए बोर्स का जो बोर्स ने जो अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया, थोड़ा सा उसको जस्टिफाई किया. What were the points? 3 points in the Bohr's atomic model. First was what? About Stationary orbitals. yes, about certain possible orbits called stationary orbits. उसी में इलेक्ट्रॉन रह सकता है. It cannot have the other any orbit. Continuous orbit नहीं है. Unlike satellites. Satellite में हम किसी भी ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में किसी भी हाइट पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट को, कोई कंडीशन नहीं है, बिकॉज दे आर अनचार्ज. बट चार्ज पार्टिकल के लिए कंडीशन है, देयर विल बी सर्टेन पॉसिबल ऑर्बिट्स. और बाद में उसने आई मीन व्हाट इज डी ब्रॉगली ने उसको बताया कि क्यों स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब क्या है, जिसमें नोट्स एंड एंटी नोट्स बन जाते हैं. दैट विल आई विल टेल यू डे आफ्टर टुमारो बाय द डायग्राम. एंड सेकंड वन वाज द that quantization, that angular momentum, उन ऑर्बिट में angular momentum quantized रहता है. वही ऑर्बिट्स है. Stationary orbits will be such that their angular momentum is of particular quantum, 1 time, 2 times, 3 times of that is nh upon 2 pi. mvr is equal to nh upon 2 pi. Quantized है. h upon 2 pi का quantum quantize 1 times or 2 times or 3 times like this. ऐसे कुछ ऐसे पॉसिबल नहीं है 1.2 times of h upon 2 pi, ऐसा नहीं. either 1 or 2. like हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज सिमिलर टू दिस वन. थर्ड वन वाज व्हाट? थर्ड वन क्या था? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, रेडिएशन होगा, है ना, उनके एनर्जी डिफरेंस का E1 minus E2 or E initial minus E final is HF, which is equal to HC by lambda. That's all. All right. Okay, then thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.